Good morning, dear students. As we are going through the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In the previous video, we have discussed about the liberalism, Napoleonic Code, right? So today we will discuss the next topics of this chapter. Today we will discuss about the Vienna Congress. Let's start. So dear students, as you know very well that after the rule of Napoleon, the France had developed their power, their strength and their territories. Napoleon was a good administrator, good military ruler, and the result was that France expanded its power in whole Europe. After that, the other representative European powers like Britain, Russia, Prussia and Austria, these four countries' army combined and they collectively fight with the Napoleon Bonaparte, and the result was that Napoleon was defeated in 1815 at the Battle of Waterloo. In Battle of Waterloo, the Napoleon was defeated. After the defeat of Napoleon, all these European power representatives, these four countries met at a Vienna to draw up a settlement for Europe. नेपोलियन को डिफीट करने के बाद इन फोर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ये लोग वियना में इकट्ठे हुए और वहाँ पे उन्होंने यूरोप के बारे में सेटलमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए ये मीटिंग की गई. दिस कांग्रेस इज नोन एज द कांग्रेस ऑफ वियना. दिस मीटिंग इज नोन एज द वियना कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन 1815 इन वियना. This Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. Duke Metternich ने इस कांग्रेस वियना की होस्टिंग की एज ए होस्ट. After the discussion in this Vienna Congress, finally a treaty was signed. This treaty is known as the Treaty of Vienna. By this treaty, the settlement for Europe was decided by these four powerful countries of the Europe of that period. This is a figure of Vienna Congress where the representatives are discussing about the future of Europe and about the future of France. Now we are going to discuss what were the main clauses, main conditions of this Vienna Treaty. इस treaty की क्या main शर्तें थी. अगर हम बात करें Vienna Treaty की clauses की, then we will find that maximum clauses of this Vienna Treaty was to repress the France. इस वियना ट्रीटी की जो मैक्सिमम क्लॉजेस थी उसका मेन मकसद केवल और केवल फ्रांस को रिप्रेस करना था, फ्रांस के एक्सपेंडेशन को, फ्रांस के एनेक्सिटी को रोकना था. जितनी तेज़ी से नेपोलियन के पीरियड में फ्रांस डेवलप हुआ था या उसकी पावर स्ट्रेंथ हुई थी, मजबूत हुई थी, उस पावर को कम करना था. सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वियना ट्रीटी वाज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट. इस ट्रीटी में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क था वो ये था कि जो मोनार्क रिमूव कर दिए गए थे उन स्टेट्स में दोबारा मोनार्क सिस्टम को इस्टेब्लिश करना और एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वियना ट्रीटी टू अंडू द चेंजेस डन बाय द नेपोलियन इन यूरोप. नेपोलियन के द्वारा जो भी कुछ चेंज किए गए थे यूरोप में उसको दोबारा पहले की तरह रिस्टोर करना. Among them, the first we talk about the France. You know very well, during the French Revolution, the Bourbon dynasty was removed in the France. So the first clause, the Bourbon dynasty was restored in the France. Bourbon dynasty को दोबारा restore कर दिया गया. Second thing, France lost the territories it had annexed under Napoleon. Napoleon के पीरियड में जो भी टेरिटरीज फ्रांस के अंडर में आई थी उन सबको दोबारा फ्रांस से छीन लिया गया. किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ. नीदरलैंड के किंगडम को बेल्जियम के साथ साथ फ्रांस के नॉर्थ साइड में इस्टेब्लिश किया गया. इतना ही नहीं, ये सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर इस्टेब्लिश इन ऑल साइड्स ऑफ द फ्रांस दैट इन फ्यूचर द फ्रांस कुड नॉट बी एक्सपेंस. फ्रांस के चारों तरफ जो विनिंग कंट्रीज थी उनके इस्टेब्लिश कर दिया गया जिससे फ्यूचर में फ्रांस फिर अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके. सेम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग द बेल्जियम इन सेटअप इन नॉर्थ एंड Geneva was added to Piedmont
in the south, Geneva in south, and Prussia was given the new territories in the west side. उसके वेस्ट साइड में प्रसिया को इस्टेब्लिश कर दिया गया, एंड ऑस्ट्रिया was given the north side. Austria get the control in the north side. But one thing, the German Confederation that was including the 39 states left untouched. जो जर्मन कन्फेडरेशन नेपोलियन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 39 स्टेट्स को, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया. और इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, राइट. सो वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि फ्रांस के चारों तरफ जो विनिंग कंट्रीज थी उनको टेरिटरीज दे करके इस्टेब्लिश कर दिया गया. चारों तरफ से फ्रांस को एक जो है बाउंड्री की तरह उसको कैद कर लिया गया, जिससे फ्यूचर में फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर सके. यू कैन सी इन द मैप हियर द प्रसिया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, राइट, एंड दिस इज द फ्रांस. इसके चारों तरफ जो एरियाज हैं वो सब विनिंग कंट्रीज को दिए गए, जिससे इन फ्यूचर फ्रांस प्रोग्रेस ना कर सके या फ्रांस फिर से जो है टेरिटरीज एक्सपेंस ना कर सके. अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर द वियना कांग्रेस द न्यू गवर्नमेंट्स दैट वर इस्टेब्लिश्ड इन द न्यू स्टेट्स एंड न्यू टेरिटरीज, these governments were totally conservative government. As you have read in the class 9 that conservatives are the people who did not want any type of the change. They believed in the old tradition. They believed in monarchs. They also believed in church. They believed in social हर चीज़ जो सामाजिक विषमताएँ हैं, जो समाज में सोसाइटी में सिस्टम है, जो ओल्ड सिस्टम है, चाहे वो चर्च का सिस्टम हो, मोनार्च का सिस्टम हो, उन सब में ये बिलीव करते थे. दे बिलीव इन द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन ऑटोक्रेटिक, दे आर टोटली ऑटोक्रेटिक पीपल्स. कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 were totally autocratic, means they did not want any interfere in their power. According to them, the monarch or the king is the supreme power. They did not tolerate the criticism and dissent. वो अपने वर्क में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं चाहते थे, कोई उनके वर्क को लेकर उनको क्रिटिसाइज करे ये भी उनको एक्सेप्ट नहीं था. They, I have already told you, believed in the traditional institution of monarchy and church. जो ट्रेडिशनल जो पहले का सिस्टम था, मोनार्क का सिस्टम था, उसी को वो टोटल जो है फॉलो कर रहे थे. एंड when they saw that if any peoples are opposing or protesting to them, these peoples were just like an enemy of this authority. अगर कोई उनको अपोज करता है, उनको प्रोटेस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, राइट. टू स्टॉप द ideas of liberty and freedom, they imposed the censorship laws. Censorship laws means without the permission of the government, without the permission of the ruler, any newspapers cannot publish the news, books and magazines everywhere. These they cannot publish anything against the government, against the authority. So they pass the censorship. मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी चीज़ किसी भी बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश नहीं की जा सकती थी. एंड दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन टुडेज वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज मेट एट ट्रीटी ऑफ वियना. वो कौन कौन सी कंट्रीज थी, उनके नेम लिखने हैं. हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ऑस्ट्रियन चांसलर, राइट. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना ट्रीटी? मेन ऑब्जेक्टिव टू रिस्टोर द यूरोप, राइट, मीन्स जो भी चेंजेस नेपोलियन के द्वारा किए गए थे उनको फिर से रिमूव करना. व्हाट काइंड ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स वी आर सेटअप इन 1815. जो 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हुए वो कैसी थी? फुल ऑटोक्रेटिक, डोंट वांट इंटरफियर, राइट. एंड लास्ट, डिस्क्राइब द मेन क्लॉजेज ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना की जो मेन क्लॉजेज थी उनको आपको लिखने हैं पॉइंट वाइज. क्लियर? सो दिस इज video of today. In the next video we will discuss the next topic of this chapter. If any doubt you can call or message me. All of you have the number of mine, right? Thank you. Have a nice day.